First year English, lecture number 56, topic the force, chapter number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First year class, how are you all students? I hope you all fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and enjoying a very safe and sound health, and may Allah keep you safe and healthy forever. Ameen, summa ameen. Students, welcome to my class. And beta, let's start the very new chapter, that is the use of force. And this short story has been written by William Carolus Williams. Dear students, William Carolus Williams, he was an American poet, writer, and above all, he was a physician, closely associated with modernism and imagism. Mean to say, his literary movement was modernism, and he quite fairly used images in his writings. Okay, beta. So, he was born on 17 September 1883 and he died on 4th March 1963. Dear students, in this lesson, the use of force, the Dr. William Careless, he tells us the story of a little girl who was a patient, and she was suffering from high fever, and he calculated this thing that she was suffering because she had sore throat, that she was hiding from the doctor and her parents as well, because she was suffering from high fever. So their parents, the parents of the girl, they called a doctor, and the doctor, he visited them. And what did he see? That the girl, she was very beautiful and cute girl, and but she was hiding her sore throat, and the doctor, he had to use force in order to open her mouth to see the tonsils that were found in her throat. So beta, this is the story about the William Carolus has written. So let's start the text. Please come down as soon as you can. My daughter is very sick. Now beta, this is the dialogue of the father of the daughter. Okay, he's saying that please come down, jaldi se आइए. Okay, as you can, my daughter is very sick. When I arrived, I was met by the mother, a big startled looking woman, very clean and apologetic, who merely said, "Is this the doctor?" स्टार्टल मीन फ्राइटन. ओके, सो एक बड़ी खौफजदा सी जो है ना हवास बाख्ता खातून जो है वो उसको पहले नज़र आई जैसे उनके घर पहुंचा. वेरी क्लीन एंड एपोलोजेटिक. ठीक है, बहुत ही एपोलोजेटिक उसका एपोलॉजी टाइप उसका बेटा बिहेवियर था. हु मेरली सेड, जिसने महज इतना कहा, इज़ दिस द डॉक्टर, क्या ये डॉक्टर साहब हैं? एंड लेट मी इन, और मुझे अंदर ले गए. शी एडिड, यू मस्ट एक्सक्यूज अस डॉक्टर, वी हैव हर इन द किचन वेयर इट इज़ वार्म, इट इज़ वेरी डैम्प ही समटाइम्स. कहते कि हमने उसको, प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा कि हमने जो है उसके बच्चे खाने में बैठाया हुआ है, क्योंकि यहाँ वहाँ कदरे गर्मी है और कभी कभार यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैम्प हो जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, दैट्स वाई. Okay, beta. Next, the child was fully dressed and sitting on her father's lap near the kitchen table. Now, he went to the kitchen, and there the doctor saw that the girl, the little child, she was fully dressed in and sitting on her father's lap. अपने वालिद की जो है वो गोद में बैठी हुई थी. He tried to get up, but I motioned for him not to bother. द फादर ऑफ द डॉटर, ही ट्राई टू गेट अप, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मैंने उसको इशारा किया कि आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है. आई कुड सी दैट दे वर ऑल वेरी नर्वस, आइंग मी अप एंड डाउन डिस्ट्रेसफुली सस्पिशियसली. बहुत जो है वो बेतबारी से उसको सर से पाँव तक देख रहे थे डॉक्टर को, जैसे समझ रहे होंगे क्या वो ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं हमारी बेटी का ये इलाज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. बिकॉज देवर पेरेंट्स एंड देयर डॉटर वॉज इल, सो बेटा दे वर क्वाइट वरीड. एज ऑफन इन सच केसेस दे वरंट टेलिंग मी मोर देन दे हैड टू. कहते कि अक्सर ऐसे मामला में होता है कि वो मुझे इस तरह से ज़्यादा नहीं बता रहे थे जो उन्हें बताना चाहिए था. ठीक है, इट वॉज अप टू मी टू टेल दैम, दैट्स वाई दे वर स्पेंडिंग $3 ऑन मी. अब ये मेरा काम था कि मैं उन्हें बताऊं, क्योंकि इसलिए तो मुझ पर जो है वो $3 खर्च कर रहे थे. मीन टू से $3 की बात इसलिए कर रहा है कि द डॉक्टर हैड बीन पेड हिज फी एंड दैट वॉज $3,000. $3. Okay, beta. Next paragraph. The child was fairly eating me up with her cold, steady eyes and no expression on her face whatever. So beta, अब वो जो है वो cold, steady eyes mean to say she was looking at the doctor
जैसे कहते हैं ना सर्द निगाहों से मुसलसल उसको घूर रही थी ना डॉक्टर को। एंड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वॉट एवर, उसके चेहरे पे कोई भी तासुर नहीं था। शी डिड नॉट मूव एंड seemed inwardly quiet and unusually attractive little thing and as strong as a heifer in appearance. Okay, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो बहुत ही गैर मामूली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शी वॉज सो मच अट्रैक्टिव। शी डिड नॉट मूव, उसने बिल्कुल हरकत ना की, बिल्कुल जो है वो हिली नहीं अपनी जगह से। एंड सीम्ड इनवर्डली क्वाइट, और वो इतनी परसकून दिखाई दे रही थी। एंड अनयूजली अट्रैक्टिव, अनयूजली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शी वॉज सो मच ब्यूटिफुल गर्ल, लिटिल गर्ल। एंड एज स्ट्रॉन्ग एज अ हेफर इन अपेयरेंस, और इतनी ही ज़्यादा जैसे वो अपेयरेंस में पावरफुल थी जैसे कि एक हेफर होती है, ठीक है, जो कि यू कैन से द चाइल्ड ऑफ खाओ, ठीक है। Next, but her face was flushed, she was breathing rapidly, and I realized that she had a high fever. Okay, beta. But her face was flushed. But her face was red. Flushed mean red. जैसे होता है ना बुखार से तप रहा होता है चेहरा, तो उस तरह से the doctor is saying that her face was flushed. She was breathing rapidly. तेज तेज सांस ले रही थी. Okay, and I realized that she had a high fever. वो कहता है कि मुझे आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया कि उसे तेज़ बुखार था। शी हैड मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड हेयर इन परफ्यूजन। ओके, उसके बहुत ज़्यादा जो खूबसूरत घने बाल थे, ठीक है। वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन ऑफर रिप्रोड्यूस इन एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स एंड द फोटोग्राफर सेक्शंस ऑफ द संडे पेपर्स। कहते हैं कि इन तस्वीरी बच्चों के जैसी थी वो, वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन, तस्वीरी बच्चे जो बेटा जैसे अक्सर मैगजीन में बहुत प्यारे बच्चों की पिक्चर्स छपी होती है ना, तो डॉक्टर इज सेइंग दैट शी वाज एज ब्यूटीफुल एज द यू कैन से चिल्ड्रन हु वर फोटोग्राफ्ड एंड द फोटोग्राफ्स आर प्रिंटेड इन द पेपर और मैगजीन, ठीक है। सो वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन ऑफन रिप्रोड्यूस इन एडवर्टाइजिंग, जिनकी अक्सर तस्वीरें जो है वो इतवार के अखबारात में आती थी इन एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स एंड द फोटोग्राफर, और जो है वो फोटोग्राफर सेक्शंस ऑफ द संडे पेपर्स, और जो तस्वीरी सफ़ात होते बेटा इतवार के अखबारात में और इश्तिहारी पर्चों में छपती हैं, तो उस तरह से बेटा ही बिकॉज ही इज़ यू कैन से कर रहे थे, उसको कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। ही वॉज कंपेयरिंग द ब्यूटी ऑफ द चाइल्ड विद दोज चिल्ड्रन हु वर फोटोग्राफ्ड एंड द पिक्चर्स वर प्रिंटेड इन द पेपर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। She has had a fever for 3 days, began the father, and we don't know what it comes from. कहता कि शी हैज़ बिन सफरिंग, उसको 3 दिन से बुखार है। उसके वालिद ने बात शुरू की, बिगेन द फादर, उसके वालिद ने बताना शुरू किया, एंड वी डोंट नो व्हाट इट कम्स फ्रॉम, और हमें ये मालूम ही नहीं कि किस वजह से हुआ है। माई वाइफ हैज़ गिवन हर थिंग्स यू नो लाइक पीपल डू बट इट डजेंट डू एनी गुड। मेरी बीवी ने जो उसको कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर लोग देते हैं, ठीक है ना, कि अपनी तरफ से कुछ मेडिसिन दे दी, सिरप दे दिए, बट इट डजेंट डू एनी गुड, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। एंड देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ सिकनेस अराउंड, और जो है हमारे पड़ोस में काफ़ी ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई है। सो वी थॉट यू वुड बेटर लुक हर ओवर, तो फिर हमने सोचा कि बेहतर है कि आप इसका मुआयना करें, एंड टेल अस दैट व्हाट इज़ द मैटर, और हमें बताएं कि मामला क्या है। ओके बेटा, I hope you have well understood. This is enough for today's lecture, and I hope that you have understood the lecture. And beta, if you feel any difficulty, you can ask me, and you have to learn the translation. That's why I translated these paragraphs, because translation of the, you can say, paragraph is given in your paper, and in this question, this paragraph, it contains 15 marks. So you have to be very careful while learning, while reading this text, and better side by side you will have to learn the similar meanings as well, because similar meanings, question answers, and translation is given in your paper from your short stories. I hope you have well understood all the things that I have been telling you. So beta, till next lecture, stay blessed. Allah Hafiz, and all of you, please remember me in your precious prayers. Stay blessed.